ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਲਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ SSVF ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਕਰਦਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ PR ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਥਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਸਟ ਇਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਲੋਗਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ +2 ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਸਪਾਊਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू, सत श्री अकाल। थोड़ा मैं चाहूँगा थोड़ा स्टडी ग्रुप बारे पहले तो जानकारी दो जी। देखिए, स्टडी ग्रुप एक तरह से यूनिवर्सिटी के इक्वल एक ग्रुप है जो कि मोर देन 40 एजुकेशन प्रोवाइडर्स यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के साथ मिलकर काम करता है। एक बच्चे ने बैचलर्स करनी है तो उससे पहले डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री जैसे होता है, या फिर पाथवे लीडिंग टू बैचलर्स होती है। ऐसे ही मास्टर्स अगर करनी है तो मास्टर्स में भी इनके पास एग्रीमेंट्स है कि भी एक बच्चा अगर उसका एंट्री क्राइटेरिया फिल नहीं होता तो वो पाथवे के साथ मास्टर्स भी कर सकता है, ग्रेजुएट डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर्स, इस तरीके से। तो सर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी है, जितनी भी ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी, ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो रिसर्च बेस्ड है, जो असेसमेंट लेवल 1 में आती है, कैटेगरी 1 में आती है। इनके ये पाथवे लेके आई हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, फ्लिंडर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। आप सोच सकते होगे ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी कैटेगरी 1 में आती है, असेसमेंट लेवल 1 में आती है, लो रिस्क में। मीन्स इसमें अगर बच्चा जाता है तो एक तरह से वीज़ा चांसेस एक तरह से मोर देन मतलब नियर बाई टू 100% के आसपास हैं। एक तो पहला वीजे का सक्सेस रेट मिलेगा, इसमें सक्सेस रेट हाई रहेगा, पूरी बच्चे को वेटेज मिलेगी और बच्चे का वीज़ा आएगा। बट कीप इन माइंड, हमें जो बच्चे चाहिए वो सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जो रियली में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ जाके कॉलेज चेंज ना करें, यूनिवर्सिटी चेंज ना करें, या फिर उनका गुम होने का मतलब पढ़ाई ना करने का लॉजिक ना हो। मतलब जेन्युइन स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया उसको ऑलवेज वेलकम करता है। और ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी जो है, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो यू विल फाइंड कि जो यूनिवर्सिटी ग्रुप 8 में है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे पढ़ाई जो बच्चा करता है ग्रुप 8 वो हमेशा बच्चा करियर उसका बनता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी जाना चाहता है। तो स्टडी ग्रुप के पास पाथवे एंड डिप्लोमाज प्रोग्राम है। मीन्स यूनिवर्सिटी में का जो फर्स्ट ईयर है वो स्टडी ग्रुप में करेगा, स्टडी ग्रुप में करेगा। जैसे कि ANU है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो इसका जो पाथवे होगा ऑस्ट्रेलियन नेशनल कॉलेज के साथ है। तो ये ग्रुप 8 रन करता है इस प्रोग्राम को, कि पाथवे या मतलब डिप्लोमाज। उसी तरह से जब फ्लिंडर यूनिवर्सिटी है तो फ्लिंडर यूनिवर्सिटी का फ्लिंडर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर रन करता है, 1 साल वहाँ पढ़ेगा, उसके बाद सेकंड ईयर वो फ्लिंडर यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का टेलर कॉलेज के साथ है, पाथवे या डिप्लोमा टेलर कॉलेज से करेगा। इसके बाद सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चा तुसीं भेजिया इत्थों, ए नाम बच्चे का हैगा, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜੀ, ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ए ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ B यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ जाऊगा। दोनों सीओई इकट्ठी होंगी सर, इकट्ठी होंगी। और यूनिवर्सिटी एम्बेसीज को ये चीज़ पता है कि ये ग्रुप 8 G8 यूनिवर्सिटी या कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटीज़ में जा अच्छा, उन्होंने इल्म है इस चीज़ ये का। सबसे पहले उनको पता होगा, क्योंकि उसमें मतलब स्टडी ग्रुप की सीओई होगी प्लस में उसके पास यूनिवर्सिटी की सीओई होगी। तो ये नंबर 1 स्टडी ग्रुप है आज की डेट में, हर एक कंसल्टेंट के पास इसका एग्रीमेंट नहीं है। बट कीप इन माइंड वो बच्चा आए जो सीरियसली पढ़ना चाहता है, जिसने अपना करियर बनाना है, जिसने अपनी बैचलर और मास्टर्स करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छी पढ़ाई के साथ चंगी एजुकेशन लेनी है। हर एक प्रोग्राम अवेलेबल है, चाहे बिजनेस के हैं, चाहे अपना क्या नाम है, इसके अलावा क्या नाम है मार्केटिंग के हैं, या फिर क्या नाम है मेडिकल के हैं, इसके अलावा चाहे बीटेक से रिलेटेड IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सारे प्रोग्राम इसमें हैं, बैचलर्स के भी, मास्टर्स के भी। तो जो बच्चा किसी भी ट्रेड का, चाहे वो आर्ट्स वाला बच्चा है, चाहे कॉमर्स वाला है, चाहे वो क्या नाम है नॉन मेडिकल वाला है या मेडिकल वाला, हर बच्चे का वेलकम है। 5.5 बैंड पे भी बच्चे की हम एडमिशन्स कराएंगे और 60% के आसपास मार्क्स होने चाहिए, और 6 बैंड का तो ऑलवेज वेलकम रहेगा ही रहेगा। प्रदीप जी, एक बच्चा किसी यूनिवर्सिटी 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ 8 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी जी। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 8 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 COE ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। जी जी। ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? अगर बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ने के बाद आप खुद देखो इंडिया में भी कोई बच्चा या कहीं पे भी जो हमारे नॉन है, वेल नॉन है, या कोई भी हमारे मतलब नियर डियर है, अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज से पढ़ा है तो वो एक अच्छे लेवल पर बच्चा सेट होता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। तो सीधी सी बात है, ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ से जो बच्चा पढ़ेगा उसका करियर हमेशा एंड हमेशा नेवर एंडिंग होगा, बहुत अच्छी स्टेज पर वो बच्चा होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, वीज़ा चांसेस हाई होंगे। तीसरी चीज़, वो पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी सेट होना चाहता है, इवन कि ऑस्ट्रेलिया या अब्रोड, हर जगह पे उसके लिए चांसेस हैं। कुल मिला के ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾ 60-70% ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, 60% ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆयरमेंट्स हैं एज पर बाकी ਦੇ रूल्स मुताबिक ही रहेंगे कि थोड़े सख्त? डेफिनेटली देखिए, एक तो हमें 5.5 बैंड बच्चे के चाहिए, पाथवे के साथ जा रहा है, तो कुछ कोर्स ऐसे हैं जो 5.5 बैंड पे मिल रहे हैं, कुछ कोर्स ऐसे हैं जो 6 बैंड पे मिल रहे हैं। +2 लिए? जी, +2 के लिए। इसके अलावा जो मास्टर्स वाले भी हैं वो 6 बैंड के साथ संपर्क कर सकते हैं, उनको भी मास्टर्स में एडमिशन्स मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जी यहाँ पे फंडिंग एम्बेसी नहीं जानी है, क्योंकि ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ है, कोई अगर यूनिवर्सिटी मांग लेती है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज नो फंड्स। ठीक है, एम्बेसी यूनिवर्सिटी मांग सकती है, मैं ये पहले बोल रहा हूँ, बच्चे को होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। तीसरी बात, एम्बेसी भी मांग सकती है और उसको रिक्वायरमेंट है, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेज में वो नहीं मांगे, आज तक नहीं मांगा किसी का। कहने का मतलब ये है कि जीटी क्राइटेरिया बच्चे का मीट होना चाहिए, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, गैप है तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस बच्चे के पास होना चाहिए, चाहे उसकी सैलरी अकाउंट में हो या फिर उसके पास क्या नाम है कैश सैलरी हो। इसके अलावा उसकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो, रिलीवेंट कोर्स में जाना पड़ेगा। बच्चे की जो फैमिली है उसकी इनकम ठीक ठाक होनी चाहिए, उसकी ITR, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए जो और यूनिवर्सिटीज़ में होता है। बट वो दूसरी यूनिवर्सिटी में बच्चा डालता है तो कई बार रिजेक्शंस आ जाती है, इन यूनिवर्सिटी में बच्चा डालेगा तो वीज़ा चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी, G8 यूनिवर्सिटी रिसर्च बेस्ड असेसमेंट लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ है। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, एक रिकमेंडेशन देखते हैं, फलाना कॉलेज फलानी यूनिवर्सिटी आ जी, फलाने कोर्स के आ जी, ऑप्शंस खुलियाँ सारी के सारे शहर में ऑप्शंस हैं, चाहे उसने पर्थ जाना है, चाहे उसने ब्रिस्बेन जाना है, सिडनी जाना है, मेलबर्न जाना है, कहीं भी जाना है, एडिलेड जाना है, जहाँ भी जाना है आपको ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे। सर जो फॉर एग्जाम्पल बच्चा पटियाले पढ़िया महिंद्रा कॉलेज, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ
ਬਠਿੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। नहीं, जिस शहर Same में वो पढ़े शहर सेम में शहर में वो पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही पढ़ेगा, जहाँ जो भी स्टडी ग्रुप है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में ही होंगे। ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਡਿਗਰੀ जी, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, जी, ਜਿਹੜੀ मतलब 3 bachelor's ਸਾਲ वाली ਦੀ 4 बात। ਬੈਚਲਰ जी, ਸੀ, जी। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ डिग्री हैगा बच्चा, जो ਉਹਨਾਂ बच्चा ਲਈ ਕੀ बैचलर option है उनके पास पाथवे है लाइक फाउंडेशंस प्रोग्राम या ग्रेजुएट डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर्स, मतलब 1 ईयर का स्टडी ग्रुप के साथ करेगा, इसके बाद वो मास्टर्स प्रोग्राम 1 ईयर का उनका मास्टर्स है। मास्टर्स हमेशा 2 ईयर की होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो 1 ईयर की स्टडी ग्रुप में 2nd ईयर का वो क्या नाम है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ +2 ਦੇ ਨਾਲ अगेन 6 बैंड 50 और 55% मार्क्स होने चाहिए, और गैप आपका है तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फंडिंग है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगेंगी, कुछ नहीं मांगेंगी, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नहीं मांगेंगी। और दूसरी बात, अगर मांगती है तो आपको प्रोवाइड करनी है, आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और वीज़ा सक्सेस रेट अगेन बोलना चाहूँगा कि G8 यूनिवर्सिटीज़ का हमेशा टॉप है। ਇੱਕ GT ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪ 8 ਗਰੁੱਪ, ਟੌਪ 8 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੱਧਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, GT ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। जी जी, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? देखो दाखला मिलेगा अगर बच्चे का GT मीट करता है तो अगेन वही परसेंटेज ठीक होनी चाहिए। मैं कोई परसेंटेज ऐसी नहीं कि 80-90% मांग रहा हूँ, मैं 55 बैचलर्स वालों के लिए, जो बच्चे +2 पास हैं 60% एंड अबव उनकी बात कर रहा हूँ। इवन कि अगर 58-59 भी मार्क्स हैं तो डेफिनेटली हम उसको इनरोल कर सकते हैं। सेकेंडली आपका बैंड स्कोर, बैंड रिक्वायरमेंट भी वही अंडर ग्रेजुएट में 5.5 भी है, 6 भी है। बट इस चीज़ का ये जरूर ध्यान रखना कि सर ने TV पे 5.5 बैंड बोले थे, मुझे और भी देखना है कि आपकी एजुकेशन कैसी है, बोर्ड क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो कीप इन माइंड यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर लगेंगे। तो आप वेस्टर्न ओवरसीज़ की नियरेस्ट ब्रांच में, जहाँ भी जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, प्लीज़ आप आ जाइए अपने डॉक्यूमेंट लेके, और आप पे का क्या नाम है हम प्रोसेस करेंगे, वीज़ा आ जाएगा 2 दिन के अंदर, ऑफर लेटर, और मैक्सिमम हफ्ते के अंदर COE मिल जाएगी। ये कहीं अदर्स यूनिवर्सिटी में बच्चे को 1-1 साल, 1-1 महीना भी लग जाता है, 1-2 महीने भी लग जाते हैं। तो यहाँ आपको 2 दिन के अंदर ऑफर लेटर, अगर सारे डॉक्यूमेंट टाइम पे अगर हम अपलोड करते हैं तो, और 1 हफ्ते के अंदर आपको COE मिल जाएगी। कीप इन माइंड अगेन मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे इंटेक भी ज़्यादा है, जनवरी इंटेक भी है, फरवरी में भी मिल जाएगा, मार्च में मिल जाएगा। इस तरह से तकरीबन हर दूसरे महीने पे बच्चे को इंटेक मिलेगा। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 19, 20, 21, 22, 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 21-22 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ graduate ਬੱਚੇ होता है। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੈਨੂਇਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ? श्योर। देखिए जो बच्चा ग्रेजुएट है ना सर, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर उसका जो गैप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल तक का गैप है, और उसने वो जॉब की है, उसको वो हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, पॉजिटिव स्टूडेंट्स मानते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल उसके पास नॉलेज है। तो जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन की है, बैचलर्स की है, उसके बाद उसके पास वर्क एक्सपीरियंस, सॉलिड प्रूफ है, डेफिनेटली उसको हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ BA ਹੈਗੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ +2 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਈਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सो स्पाउस केसां ਲਈ थोड़ा जा देखो देखना ये होगा, हर एक यूनिवर्सिटीज़ का, हम स्टडी ग्रुप से बाहर आ जाते हैं, G8 की भी बात करेंगे, बाहर की बात करेंगे। एक बच्चा जो ग्रेजुएट है और उसके बाद वो मैरिड भी है, देखना ये होगा कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई यूनिवर्सिटी मांगती है कि मेरे को 6 मंथ ओल्ड मैरिज वाले बच्चे चाहिए, कोई साल पुरानी भी मांगती है, कोई 2 महीने, 1 महीने पुरानी भी मांगती है। ये हाँ, क्योंकि एम्बेसी बोलती है, यूनिवर्सिटीज़ को राइट दिए हुए हैं। हर एक यूनिवर्सिटी, एजुकेशन प्रोवाइडर्स हम बोल सकते हैं, चाहे वो कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटीज़ है, उनको राइट्स हैं कि भाई आपने GT चेक करनी है। आप कैटेगरी 1 में है, ज़्यादा अगर आपके वीज़ा रिजेक्ट हुए,
फेक डॉक्यूमेंट लगाए, फेक स्टूडेंट लेके आए तो आपका कैटेगरी 2 या 3 में भी जा सकते हो। तो हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज अपना जो असेसमेंट लेवल है वो रैंकिंग बचाना चाहती है। तो उस चीज़ की, उस रेस में सारी यूनिवर्सिटी जीटी चेक करती हैं कि भाई मेरी पोजीशन नंबर 1 ही बनी रही, मैं पोजीशन 2 पे हूँ तो 1 पे आ जाऊँ, 3 वाला 2 पे या 1 पे पहुँच जाए। तो उसके लिए वो जीटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। एम्बेसी ने सारी की सारी तलवार यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के ऊपर रख रखी है कि भाई अगर जेन्युइन स्टूडेंट लोगे तो आपकी ये कैटेगरी मेंटेन रहेगी, नहीं तो आप नीचे भी जा सकते हो, निचले पायदान पे भी आ सकते हो। तो हर एक बंदा नंबर 1 की उसमें रेस में रहना चाहता है। तो इसलिए हर एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अपना जीटी चेक करता है, उसमें बच्चे की एजुकेशन, उसकी फंडिंग, उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसकी पेरेंट्स की या जो स्पॉन्सर करें उनकी एनुअल इनकम। तो जो अब ये जब यूनिवर्सिटीज़ पे बात आती है तो हर एक यूनिवर्सिटी यही चाहेगी कि हम जेन्युइन मैरिज वाला बच्चा लें। और उसके लिए क्या होगा कि बच्चे की 6 महीने या साल पुरानी मैरिज हो ताकि वो रिलेशन दिखे कि ये मेंटेन है। और आपने देखा होगा इंडिया में, खासकर पंजाब में, हरियाणा में या गुजरात में क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट या कंसल्टेंट फेक मैरिज पे जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने ये चीज़ निकाली कि भाई साल पुरानी या 6 महीने पुरानी हो तो रिलेशन पता लग जाता है कि भाई ये वास्तव में लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं। तो वो सीडीज़ भी देखते हैं मैरिज की, अपना आनंद काज भी देखते हैं, इसके अलावा उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी देखते हैं, इसके अलावा क्या नाम है उसके फ़ोटोज़ भी होते हैं, इसके अलावा हनीमून पे गए हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट देखते हैं। घर में कोई 6 महीने में कोई तो फंक्शन हुआ होगा, कोई जागरण किया होगा, कोई और अखंड पाठ रखा होगा, कोई और मैरिज हुई होगी, तो उन सब के डॉक्यूमेंट्स भी वो देखना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि पुरानी पीछे जो पास्ट में देखा गया वो फेक मैरिज देखी गई। इवन कि मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और वीज़ा रिजेक्शन लेके आता है सर, तो एम्बेसी में फाइल लगाई और उनकी जो रिफ्यूज़ल आई थी, इवन कि एम्बेसी ने पहले वेरीफाई किया उसके घर पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन। क्योंकि होता क्या है कि उन्होंने मैरिज तो दिखा रखी है जून में और जो फोटो रजिस्टर्ड मैरिज दिखा रखी है वही हमारी जून में मैरिज हुई, और जो फोटो दिखा रहे हैं, सीडी दिखा रहे हैं, उसमें कोट टाई और क्या नाम है जर्सियाँ, कोटी, मतलब सर्दी का मौसम। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो एम्बेसी को डाउट हो गया, डाउट हुआ तो वेरिफिकेशन हुई, फिजिकल वेरिफिकेशन में कुछ पाया नहीं क्योंकि लड़की वहाँ रह ही नहीं रही। तो कहने का मतलब नकल मारने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। और पहली बात तो कभी ऐसी नकल मारो ही मत क्योंकि आपका करियर स्पॉइल हो गया। वो लड़का कभी ज़िंदगी में ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता। तो इतनी जल्दबाजी में, इतनी शताब्दी में क्यों बैठ के आते हो कि भाई जेन्युइन मैरिज करो यार, तब जाओ। यही एक रीज़न है। एम्बेसी नहीं बोलती कि करंट मैरिज पर बच्चा नहीं जा सकता, बच्चा जा सकता है, लेकिन ये फेक में एम्बेसी को भी सिखाया किसने? इंडिया ने सिखाया है कि भाई यहाँ जाने के लिए इतने उतावले हैं लोग कि मतलब फेक मैरिज, फेक डॉक्यूमेंट, फेक चीज़ें करके ये फाइल लगाते हैं। एक चीज़ और, अभी मैं पिछले वीक ऑस्ट्रेलिया में था तो तकरीबन AIC की कॉन्फ्रेंस था, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। वहाँ मैं कुछ कंसल्टेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से मिला। ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ में भी बड़े बड़े एजेंट्स के थ्रू बच्चे गए हुए हैं फेक डॉक्यूमेंट पे। उन बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उनको वापस इंडिया डिपोर्ट किया है। तो कीप इन माइंड, ऐसी क्या जल्दी यार 20 लाख रुपये, 15 लाख रुपये, 10 लाख, 12 लाख रुपये आप लगा के जा रहे हो फेक डॉक्यूमेंट पे और आप आज डिपोर्ट भी हो रहे हो। तो इसी कारण से इंडिया हमेशा कलाकारी देखो ना, तुम कंसल्टेंटां दी नकली कागज लाने 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਉਂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, 8 ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ, ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੌਪ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ SPP ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਫਾਸਟ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਜਸ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 8 ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ? देखिए सर, 8 ग्रुप बच्चे को पूरा मतलब डायमंड बना देगा। मतलब रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बच्चा वास्तव में करियर फोकस करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, इन यूनिवर्सिटी में जाए, पढ़ेगा। इंटर्नशिप पे भी होगी, मतलब पेड इंटर्नशिप मीन्स लाइक रिसर्च बेस्ड सारी चीज़ें होंगी। तो ये ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए बनी है सर। इंडस्ट्री, गवर्नमेंट उनको डोनेट करती है, वहाँ की बिजनेस इंडस्ट्री उनको डोनेट करती है कि रिसर्च करो। तो रिसर्च किन से कराने? बच्चों से तो कराने। तो यहाँ से जो बच्चा पढ़ा और रियली में जिस बच्चे ने सिर्फ पढ़ाई फोकस है, वो बच्चा ऑस्ट्रेलिया से कभी वापस नहीं आ सकता। बच्चे वहाँ, मैं काफ़ी बच्चों से मिला ऑस्ट्रेलिया में, सब बच्चों ने वीज़ा रूल ब्रेक कर रखे हैं। मतलब गए, जाने के बाद कॉलेज चेंज कर लिए या
अपना क्या नाम है वीज़ा चेंज करा लिया, वर्क वीज़ा में चेंज कराने की कोशिश करी, सारे के सारे रडार पे हैं, सारे वापस आएंगे। आज की डेट में जो बच्चा SSVF के अंदर जा रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, पढ़ाई कंप्लीट करे, उसके बाद बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨਟੇਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ होने? सर देखिए, अब फैब इनटेक है और इससे पहले जैसे जनवरी इनटेक भी मैंने बताया, जैसे पाथवे प्रोग्राम्स हैं, तो पाथवे प्रोग्राम तो हर महीने दूसरे महीने चलेंगे। तो आप कीप इन माइंड कि आप वेस्टर्न ओवरसीज में आइए, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, जैसे मैंने बताया अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, आप आइए। फैब इनटेक है, उससे पहले भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और डायरेक्ट एंट्री चाहिए तो फैब इनटेक है, इसके अलावा पाथवे चाहिए, जनवरी फरवरी का इनटेक है। उसके बाद आपको 1 ईयर पढ़ने के बाद नेक्स्ट ईयर फिर आपका जो फैब या सितंबर जो भी होगा या जुलाई जो भी होगा, आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब 1 साल पढ़ने के बाद आपका नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एडमिशन है। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ, ਕਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਜੀ PR ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਗਲਤ ਭੇਜਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਲਊਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੰਸल्टेंसी ਨਾਲ मैच नहीं कर पा रहे? देखो, यहाँ जैसे हम यहाँ कंसल्टेंट बैठे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी ऑन शोर कंसल्टेंट बैठे हैं। इवन कि हम भी अपना ऑफिस खोल रहे हैं वहाँ पे मेलबर्न में। तो वहाँ पे उनको मतलब एक तरह से मैं बोलूँगा कि वो बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं कि भाई तेरे तो इसकी फ़ीस ज़्यादा है, तू तो दूर रह रहा है, ठीक है, इसके अलावा तो स्ट्रिक्ट है, स्कूल में तेरे को 3 दिन जाना पड़ेगा, तेरा ये कोर्स रिलेवेंट नहीं है, इसमें PR नहीं है। इस तरह से बच्चे को डरा धमका के और उसका कॉलेज चेंज करा देते हैं। वीज़ा लगा हुआ है, पक्की पकाई हो, कैसे मलाई है एक तरह से, तो बस उसको वो खाते हैं। तो ये बच्चा हमेशा गलती करता है ऑस्ट्रेलिया में जाके, और ख़ासकर इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। जो इस टाइप से यहीं से आप रिसर्च करके जाइए, वहाँ जाके इस तरह से करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी PR ही है या आप सेटल ही हो, आप वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि दे नीड द जेन्युइन स्टूडेंट्स। आप जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा रहे हैं उसमें पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। जी प्रदीप जी, कुछ खास ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲਈ, दाखिले ਲਈ, वीज़े ਲਈ, बेनीफिट ਲਈ पूछना भूल गया, कुछ तुसी साझा करना चाहो? सर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो शो था हमारा डेडिकेटेड ऑस्ट्रेलिया में था। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो हर एक टाइप का एजुकेशन प्रोवाइडर हमारे पास है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज। ग्रुप 8 की हमने बात करी, स्टडी ग्रुप की बात करी। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, रियली में करियर बनाना चाहते हैं, तो इसमें वीज़ा सक्सेस रेट हाई है। 5.5 बैंड पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती हैं। हम यहाँ पे ग्रुप 8 में मतलब स्टडी ग्रुप के थ्रू, मतलब 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद आपकी डिग्री ग्रुप 8 से स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो 5.5 बैंड पे भी जा सकते हैं, 6 बैंड का ऑलवेज वेलकम रहेगा। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास हैं, आप वहाँ भी आ सकते हैं, उन कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं। तो हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सेकेंडली मैं एरी मेंबर हूँ। एरी एक एसोसिएशन है जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को इंडिया में रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा मैं क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। मीन कहीं ना कहीं जो एरी मेंबर की मीटिंग होती है, साल में 2 बार होती है, इंडिया में 1 या 2 बार, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जैसे हर साल अक्टूबर में होती है। हमेशा हमें चांस मिलता है वीज़ा ऑफिसर से मिलने का और एजुकेशन मिनिस्ट्री से मिलने का, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलने का। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे कंसल्टेंट से डिफरेंट हमें पैदा करती हैं। और डेफिनेटली हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने एथिक्स पे खड़े रहें और बच्चों का करियर बनाने में हमेशा योगदान दें। थैंक यू जी, बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੀ ਸੀਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। 8 ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਟਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾ ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਦਬ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।